Hello, my dear students. In our last lecture, we have studied as to what are various ratios with the help of which we can apportion the expenses and income into pre and post incorporation periods. So we'll be starting with our first question from this chapter now. The question is, Rajasthan Udyog Limited incorporated on 1st August 2017. I told you have to find out 3 dates. So the 3 dates are, one is acquisition की date, second is incorporation date, and third is date of closing of financial year. Okay, so हमें क्या बताया गया? Rajasthan Udyog Limited incorporated on 1st August 2017. So incorporation date we are given is 1st August. Okay. Then received a certificate to commence the business on 31st August. I told you in my previous lecture itself that when in the question you are given with date of incorporation and also the date of certificate of commencement, you have to ignore this. इसका कुछ नहीं करना आपको. Certificate of commencement का कुछ नहीं करना. It had acquired a running business from Messrs. Gupta and Company with effect from 1st April 2017. Now this is date of concern for you. Acquired on 1st April. Alright. Now, from the end of the question, we'll be somewhere getting to know the date of closure. Just see the last paragraph. Ascertain the pre-incorporation period, pre-incorporation and post-incorporation amount of profit and prepare a balance sheet of the company as on 31st March. So our 3 dates becomes 1st April, 1st August and 31st March. So these are our 3 dates and I think we are able to calculate now the time ratio. So I have made this working note 1 for you. So these are our 3 dates, 1st April, 1st August, 31st March. So this is a period of 4 months. This is a period of 8 months. So our time ratio becomes 4:8, 1:2. Date of acquisition, date of incorporation, date of closing of annual accounts. So this time is pre 4, this time is post 8. The ratio becomes 1:2. I hope it is clear. Next, let's read the question further. The purchase consideration was 5 lakh. अब बात ध्यान से समझिए. राजस्थान उद्योग लिमिटेड बनी है किससे बिजनेस लेके? मैसर्स गुप्ता से. अब मैसर्स गुप्ता से अगर बिजनेस खरीदा है तो कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे और उन पैसों को बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन कितनी है? परचेज कंसिडरेशन है 5 लाख रुपए और ये जो 5 लाख है ऑफ विच 1 लाख इज टू बी पेड इन कैश, 1 लाख कैश में पे किया और एंड 4 लाख इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स. ये शेयर्स की फॉर्म में पे किया. तो अगर ये शेयर्स की फॉर्म में पे किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब बनेगी कंपनी की बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में सीधा 4 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा क्योंकि ये अपनी ही कंपनी के शेयर्स, राजस्थान उद्योग लिमिटेड के शेयर्स इन्होंने उसको मैसर्स गुप्ता को इशू किए. सो ये 4 लाख है, ये 1 लाख तो चला गया, इसका अब कुछ नहीं करना है. वी हैव नॉट टू डू एनीथिंग फॉर दिस नाउ, बट दिस 4 लाख इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. व्हाई? बिकॉज ये कंपनी बनने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा. ऑलराइट, आगे. द कंपनी ऑल्सो इशूड शेयर्स फॉर 4 लाख इन कैश. जब कंपनी बन गई, ये 4 लाख तो फ्री में दिए थे, फ्री में नहीं. We had purchased some assets of the company, so that's why we had given the amount in the form of shares. So ये एक तो 4 लाख के इशू हो गए, प्लस और कंपनी ने क्या कर दिया? What they are saying is the purchase consideration was 5 lakh, of which 1 lakh is to be paid in cash and 4 lakh in the form of fully paid share. The company also issued shares for 4 lakh in cash. So plus 4 लाख, तो टोटल कंपनी की जो कैपिटल है वो ₹8 लाख आएगी जब हम बनाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट. आई होप दिस इज क्लियर. टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी बिकम्स नाउ 8 लाख. वाई? बिकॉज 4 लाख उसमें से हमने कैश के बदले में इशू किए लोगों को, जनरल पब्लिक को, और 4 लाख हमने जो हमारा सेलर था बिजनेस का, हमने उसको इशू किए थे. आगे. Machinery costing 2,50,000 was then installed.
ये भी बैलेंस शीट में जाएगा कि हमारे पास मशीनरी कितने की आ गई, 2.5 लाख रुपए की मशीनरी आ गई। एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम वेंडर्स, नाउ माइंड इट, वी हैव परचेज एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स। वेंडर कौन है यहाँ, मैसर्स गुप्ता। मैसर्स गुप्ता से क्या क्या लिया जो उसको 5 लाख दिया। मैसर्स गुप्ता से हमने मशीनरी ली 3 लाख की, हमने स्टॉक लिया 60,000 का, हमने पेटेंट्स लिए 40,000 के। तो अब तक आपके माइंड में एक पॉइंट आना चाहिए, क्या भाई, वी हैड परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹3 लाख, स्टॉक वर्थ ₹60, पेटेंट वर्थ ₹40,000, टोटल बिकम्स 4 lakh. How much we have paid him? We have paid him 5 lakh. You all have done it in partnership. What is the difference? Yes, the difference is goodwill. So this is how you will be calculating your goodwill. Just see a working note I have made for you. Just wait. Okay. So this is the calculation of goodwill. Purchase consideration was 4 lakh. Assets taken over is machinery 3 lakh, stock 60,000, patents 40,000. So this 1 lakh becomes your goodwill, and this goodwill will go to, yes, balance sheet. Okay. After that, during the year 17-18, अब यहां से हमारा प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द टोटल सेल्स वर 18 लाख, वी हैव नॉट टू डू एनीथिंग फॉर दिस। द सेल्स पर मंथ, अब यहां से हमारे पास निकलेगी सेल्स रेशो, ध्यान से पढ़ना ये पॉइंट। दे आर सेइंग 17-18 में टोटल सेल हुई है हमारी 18 लाख की। सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वर 1/2 ऑफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर। मतलब 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर था, जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हुआ, इसके पहले 6 महीने में सेल्स पर मंथ इन दी फर्स्ट हाफ ईयर वर 1/2 ऑफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर। मतलब सेकेंड वाले हाफ ईयर में जितनी सेल हुई उसकी आधी सेल पहले वाले 6 महीनों में हुई। अब आपको ये नहीं कर देना सीधा कि भाई ये तो समझ आ गया, सेल्स रेशो हो गई 1:2। नो, वाई? बिकॉज उन्होंने जो आपको रेशो दी है वो रेशो दी है फर्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 6 मंथ्स, वेयर एज आपका जो टाइम रेशो है वो ये है, पहले 4 महीने और अगले 8 महीने। सो हाउ अबाउट यू विल बी गोइंग विद इट। ये आपका ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में ऐसा टेबल बनेगा, लाइक दिस। यू विल राइट ऑल द मंथ्स, दिस इजिएस्ट मेथड फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट द सेल्स रेशो विदाउट एन एरर। यू विल राइट ऑल द मंथ्स एंड उन्होंने कहा है लास्ट वाले 6 महीने में जितनी सेल हुई, तो मैंने लास्ट वाले 6 महीने में इसको 1 मान लिया, आप इसको x भी मान सकते हैं। What you can do is x x x और यहां पर 0.5x, तो वो x x कट के अगेन 2/7 रह जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिए। दे आर सेइंग पहले वाले 6 महीनों में जितनी सेल हुई वो आधी थी देन नेक्स्ट वाले 6 महीनों की सेल। तो हम सबसे पहले एंड वाले 6 महीनों की बात करते हैं, नीचे से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां तक हमने 1 लिख दिया। तो अगर यहां तक 1 है तो ऊपर वाले मंथ्स में कितनी सेल हुई, 0.5। अब इसका कर लिया, अब हमने देख लिया, ये लिख लिया हमने। अब हम अपनी इस टाइम रेशो के अकॉर्डिंगली डीमार्केशन कर देंगे कि भाई हमें जो सेल्स रेशो निकालनी है वो पहला कितना टाइम पीरियड है और दूसरा कितना टाइम पीरियड है। तो पहला टाइम पीरियड कितना है, 4 महीनों का, तो हमने पहले 4 महीने के बाद ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको टोटल कर लिया, ये बन गया 2, ये बन गया 7। आई रिपीट इट वंस अगेन। What you will do in almost every question, you will make a table like this, starting from the date of acquisition to the date of closing. फिर आप लिखोगे कि कितनी सेल आपको बताई गई। आपको बताया गया कि लास्ट वाले 6 महीनों में जितनी थी उससे पहले 6 महीनों में आधी थी। तो हम हर एक मंथ का, बिकॉज वी वॉन्ट मंथ वाइज डिटेल, सो यहां पर 1 लिख लिया और उससे ऊपर वाले 6 महीनों में 0.55 लिख लिया। दिस इज फर्स्ट स्टेप। Second step now is according to our time ratio, we'll make this line. हमारी टाइम रेशो थी पहले 4 महीने, तो हमने पहले 4 महीने के बाद भाई ये लक्ष्मण रेखा खींच दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.5 0.5 0.5 0.5, so this comes out to be 2, और ये टोटल हमारा कितना बना, 7. So our sales ratio becomes 2:7. I hope I am clear. Next, the net profit for the company after charging the following expenses is 1 lakh. अब भाई हमें एक प्रॉब्लम दे दी उन्होंने, क्या? अब आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन कि भाई ये तो हमें निकालना था नेट प्रॉफिट, ये तो इन्होंने ही दे दिया। सो व्हाट वील डू, हम इनको ऐड बैक करेंगे। क्यों?
try to understand. They have given us a clubbed figure of total, but we want to segregate it in two parts. All right. So what we'll do, we'll first calculate the net profit. We have been given net profit after charging falling expenses. We'll be calculating gross profit. How? We'll be adding back all these things. Just see. Net profit after charging the following expenses were 1 lakh. डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हुई, ऑडिट फी इतनी चार्ज हुई, डायरेक्टर्स की फी इतनी चार्ज हुई, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इतने चार्ज हुए, ऑफिस एक्सपेंसेस इतने चार्ज हुए, सेलिंग एक्सपेंसेस इतने चार्ज हुए, इंटरेस्ट टू वेंडर्स, इसमें एक पॉइंट है, आई टेल यू लेटर, इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू 31 अगस्त इतना चार्ज हुआ. तो ये यहां से लेकर यहां तक सारे खर्चे हैं जो हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए हैं. वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड दीज एक्सपेंडिचर्स. सो now we'll first calculate our gross profit. And how about we shall be calculating for our gross profit? We'll be adding back all these. When you will add in 1 lakh, 54,000, 7,500, 25,000, 6,000, 39,000, 36,000 and 2,500, you will get to know a figure of 2,70,000. This figure you will be getting how? After adding from this figure to this figure in 1 lakh. So we have added all these expenditure. So we have come out to GP. From here we shall be starting with our question. So GP is 2,70,000. Next. Ascertain pre-incorporation and post-incorporation amount of profit and prepare the balance sheet of the company. क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 70,000. माइंड इट, हमने जो स्टॉक लिया था वो 60,000 था, लेकिन अब जो स्टॉक है वो 70,000 का हो गया. तो बैलेंस शीट में ये जाएगा या ये जाएगा? यस, द बैलेंस शीट विल गेट 70,000. द क्लोजिंग, यू नो इट, क्लोजिंग स्टॉक कम्स इन द बैलेंस शीट. सो दिस इज हाउ यू शैल बी नाउ स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चन. आई हैव सॉल्व्ड इट ऑलरेडी फॉर यू. Revenue from operation starts with the GP. I've already told you our gross profit is 2,70,000. So 2,70,000 को हमने किस रेशो में डिवाइड कर दिया? इन सेल्स रेशो. COGS और सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट ये सब किस रेशो में जाएगा? सेल्स रेशो में. सो सेल्स रेशो में 2:7 की रेशो में वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड. ओके. नेक्स्ट आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनी अदर इनकम. Then we don't have any employee benefit expenses. In some of the books, you might see office expenses being treated as employee benefit expenses. It is purely an exemption. You can either write office expenses here in the other expenses, or in case you treat them as employee salary or wages, you can take here. So I've not taken it here. I'll take it in other expenses. So employee benefit expenses 0. Finance cost. Now this is very important, my dear students. Interest comes in finance cost, that you know it, but how this calculation will come? Just see this line. Interest to vendors up to 31st August 2017. Now, here for interest to vendors, जिस तरह से हमने यहां पर ये बनाई थी, सिमिलरली यहां पर ये बनानी पड़ेगी. वहां पर हम स्टार्ट हो रहे थे 1 अप्रैल से, यहां पर भी स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से. वहां पर रुके थे 1 अगस्त तक, यहां पर भी रुकेंगे 1 अगस्त तक. लेकिन एंड कहां तक जाएंगे? जहां तक आपको बोला है फॉर इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स. टाइम रेशो के लिए हम 31 मार्च तक गए, लेकिन क्या वेंडर्स को इंटरेस्ट भी 31 मार्च तक देना है? नहीं. वेंडर्स को इंटरेस्ट कब तक देना है? 31 अगस्त तक. तो यहां पर आएगा 31 अगस्त. सो आवर रेशियो बिकम्स 4:1. माइंड इट, इट इज नथिंग बट अ टाइम रेशियो. However, with an exception that we did not go till 31st March. Why? क्योंकि वेंडर्स को इंटरेस्ट 31 मार्च तक नहीं देना. वेंडर्स को इंटरेस्ट देना है 31 अगस्त तक. तो जो तीसरी डेट है, इस पूरी इक्वेशन को सेम लिखोगे आप यहां, एक्सेप्ट दिस चेंज. इसकी जगह ये डेट आएगी 31 अगस्त वाली. सो आवर डेट बिकम्स दिस. वन थिंग मोर, अगर यहां पर लिखा होता टिल 31 जुलाई या 30 जून, तो वो तो यहीं पर खत्म हो जाता ना हमारा, यहीं पर ही. अगर यहां पर लिखा होता, आई रिपीट इट, टिल 30 जून की इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स को हमने 30 जून तक पैसे दे दिए, तो वो 30 जून तो बेटा यहां से पहले ही हो गया ना खत्म. तो ये सारे का सारा फिर जो खर्चा 2500 का था, हम कहां डालते?
प्री में, पोस्ट में नहीं डालते। बट यहां क्योंकि 1 अगस्त के बाद भी 1 महीना तक इंटरेस्ट दिया है, तो हम प्री और पोस्ट में इस खर्चे को डिवाइड करेंगे। सो 4:1। आई होप इट इज क्लियर। सो फाइनेंस कॉस्ट वॉज 2500, हमने उसको डिवाइड किया 2000 और 500 में। डेप्रीसिएशन 54,000 थी, अगेन फिक्स खर्चा है, टाइम रेशो में डिवाइड कर दिया। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे। आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कि कंपनी को बनाने के खर्चे होते हैं। तो कंपनी को बनाने के खर्चे हैं, तो कंपनी बनने के बाद ही लिखोगे ना वो खर्चे, तो कंपनी के लिए ही होंगे ना वो खर्चे। पोस्ट में जाएंगे तो 6000 सारा यहां आ गया। ऑफिस एक्सपेंसेस अगेन फिक्स एक्सपेंसेस, नॉट रिलेटेड टू सेल्स, टाइम रेशो के बेसिस पर डिवाइड हो गए। ऑडिट फी अगेन टाइम रेशो के बेसिस पर डिवाइड हो गए, फिक्स एक्सपेंसेस है। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर्स आर ऑफ कंपनी, तो कहां जाएंगे? पोस्ट में। सेलिंग एक्सपेंसेस किसके लिए किए जाते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स करने के लिए, तो किस रेशो में जाएंगे? सेल्स की रेशो में 8000 और 28,000। अब मैंने क्या किया? 60,000 में से 43,500 माइनस किया, ये प्रॉफिट आ गया एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब मैंने क्या किया? 2,10,000 में से 126,500 माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया 83,500 और ये कहां जाएगा? P&L में। P&L मतलब कहां जाएगा? सरप्लस अकाउंट इन बैलेंस शीट। ये भी कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व कहां आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। दोनों ही रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, बट अंडर डिफरेंट हेडिंग। ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये जाएगा सरप्लस में। लेट्स स्टार्ट विद आवर बैलेंस शीट नाउ। Now this is the balance sheet. I told you initially itself टोटल कितने रुपए के शेयर इशू हो गए थे? 8 लाख के। 4 लाख जो फ्री में इशू किए थे और 4 लाख जो कैश से किए। और लॉ हमें कहता है कि जब आप कोई शेयर फ्री में इशू करो, कंसिडरेशन अदर देन कैश, यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट इन इंटरनल कॉलम दैट ₹4,000 शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व जो हमने अभी निकाला, ये वाला 16,500, सरप्लस ये 83,500 यहां पर, तो 9 लाख इज आर टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड। नाउ इस एसेट्स, नॉन करंट एसेट, माइंड इट, 3 लाख की मशीनरी हमें वहीं से मिली थी, जो हमने यहां पर लिखा था परचेज कंसिडरेशन जब कैलकुलेट की थी इस वर्किंग नोट में। हमें 3 चीजें मिली थी। मशीनरी मिली थी 3 लाख की, स्टॉक मिला था 60,000 का, पेटेंट्स मिले थे 40,000 के। तो वो हम एज इट इज यहां लिखेंगे। जस्ट सी, मशीनरी 3 लाख की लिख दी मैंने, लेकिन एक मशीनरी वहां पर लिखा था द न्यू मशीनरी ऑफ 25,000 हैज बीन इंस्टॉल्ड। लेट्स हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन में यू हैव बीन गिवन द कंपनी, यस, the purchase consideration was 5 lakh, of which 1 lakh was to be paid in cash and 4 lakh in the form of this. The company also issued 4 lakh के और शेयर इशू किए। Machinery costing 2,50,000 was then installed. ये नई इंस्टॉल्ड की थी और ये पुरानी मिली थी, तो टोटल मशीनरी कितने की हो गई? 5,50,000। और इसमें से जो हमने ये डेप्रीसिएशन लिखी थी यहां, ये 18,000 प्लस 36,000। माइंड इट, बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स नहीं बनाने हैं। बैलेंस शीट का सिर्फ एक पार्ट बनेगा, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ टोटल होलसम स्टेटमेंट। ठीक है, तो 54,000 दैट इज 36,000 प्लस 18,000, तो ये 54,000 माइनस करके 4,96,000 आ गया। गुडविल हमने अभी कैलकुलेट की थी, दिस इज आवर गुडविल 1 लाख। 5 लाख में से ये सब माइनस करके 1 लाख हमारी गुडविल आई थी। पेटेंट्स हमने ये एक्वायर किए थे यहां से, ये पेटेंट्स आए थे हमारे पास 40,000 के, वो लिख दिए। अब स्टॉक ये नहीं लिखना है, स्टॉक कौन सा लिखना है? जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, दैट इज 70,000। और अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, सो वी आर गिवन इनकम्प्लीट फैक्ट्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ इनकम्प्लीट फैक्ट्स वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी द अदर करंट एसेट्स एज बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे आया? 9 लाख माइनस 4,96,000 minus 1 lakh minus 40,000 minus 70,000. This comes out to be 1,94,000 and our balance sheet is matching. You can solve similar kinds of sums in order to have more confidence about the sums. Thank you so much.